Good morning. Shall we start? Have you done, was there any homework first of all? Which was the homework? Huh. What is the answer of 43? 12.9%. And then 47? 12%. 12% you should be getting. Just check EB 81 lakh. Acha. हाँ 47 तो विचारलं मी. And then 44 ना. 44 19.09%. So yesterday we had completed 36th problem, right? Just we quickly revise what we have discussed in Modigliani and Miller approach. First of all, proposition was same, right? As of net income approach. Net income approach में क्या दिया था? Basically, capital structure will not influence overall cost of capital and value of firm. The reason was been given that जैसे जैसे डेट कंटेंट इंक्रीज होता है, cheaper source of finance का proportion increase होगा, इसलिए there will be a benefit, but that benefit will be offsetted by increase in cost of equity because the risk perception of equity shareholders will increase, right? And therefore overall cost of capital will remain constant, right? He says net operating income approach says we consider a particular company into risk class and एक बार एक इंडस्ट्री का एक रिस्क क्लास अटैच किया so we'll be expecting, say for example 15%. So we'll be expecting 15% overall cost of capital from all the companies belonging to same risk class irrespective of capital structure, right? And the same was been given under Modigliani and Miller approach. Only Modigliani and Miller approach has further given explanation by use of arbitrage, right? यानी कि अगर एक ही इंडस्ट्री में दो अलग अलग कंपनियों जिसका सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अलग हो but all other things, total capital, operating profit, everything is same, then the value of both the company share should be constant or same, right? अगर उसमें difference हो तो there will be a scope of arbitrage profit, right? So the whichever company is having higher price, people will sell that company shares and purchase the lower price share, and this purchase and sale will settle the price of equity share in long run at constant level, बराबर? And this arbitrage calculation we have seen, इसका एक पार्ट देखा था हमने मॉड्यूल में, अलग टाइप से arbitrage calculation दिखाया. Means in module, in some of the problems they have given what we have solved as yesterday 36 problem, लेकिन alternative approach also been given but that will solve with module only. Okay, means what they have done, हमने क्या किया 16,800 previous problem में total funds available थे, उतना पूरा का पूरा इन्वेस्ट किया एंड देन अर्निंग्स के बेसिस पे आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकाला, राइट? बट देन इन मॉड्यूल इट इज बीन गिवन कि 10% आपके होल्डिंग थे, आप बोरोइंग करके 10% ही इन्वेस्ट करोगे. ओके, विल इन्वेस्ट इन सच अ वे दैट जो नेट अर्निंग्स इन्वेस्टर को था अर्लियर कंपनी एक्स में, सेम विल बी द अर्निंग्स अवेलेबल टू हिम अंडर कंपनी वाई, लेकिन उस टाइम इन्वेस्टमेंट कम होगा. यानी कि आई विल एक्सप्लेन. ये जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा 16,800 इन्वेस्ट किया था, बराबर? एंड देन वी हैव गॉट दिस 1656. तो मॉड्यूल में एक दूसरा टाइप से कैलकुलेशन क्या दिया है, हम इन्वेस्ट करते टाइम पूरा 16,800 नहीं करेंगे, हम लेस इन्वेस्ट करेंगे. ओके, से फॉर एग्जांपल 15,000. अब 15,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? 16,800, सॉरी 1,800. This will be the balance amount and this 15,000 will be calculated in such a manner that यहाँ पे आपका earnings जो होगा वो 1440 ही होगा. ठीक है, means keeping the same earnings, now we are having balance fund of this 1800. This is also an arbitrage gain only. Okay, this is the another way. We'll follow first of all one constant method and then module जब solve करेंगे that time we'll solve by that alternative method also. Okay, so shall we continue? Now in arbitrage what were the steps to be considered? First of all, assumption क्या था? एक तो firms will be classified into equivalent risk class. Okay, and the second assumption was corporate leverage will be replaced by personal leverage. इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, वो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है सिमिलर कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा. यानी कि कंपनी में अगर बोरोइंग्स हो तो उसी प्रोपोर्शन में वो भी बोरोइंग्स करेगा, बिकॉज जो कंपनी लेवरेज यूज करके बेनिफिट कमा रही थी, सेम बेनिफिट वो इन्वेस्टर भी कमाना चाहिए. ओके, चलिए
Now we'll read 12th problem. Have you completed with reading? Now what is difference in the previous problem? कौन सा हमने सॉल्व किया था? 36 क्या? 36th and इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली वहां पे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाज बीन गिवन, हियर एनी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट बीन गिवन. तो जब आप स्विच करोगे तो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग कि क्या वैल्यू, सपोज आपके पास 10% होल्डिंग हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 10%? For that first working you have to calculate is value of equity share. Okay, remaining steps will remain same, but यहाँ पे एक additional working हमें draw करना होगा for calculation of value of equity shares. And how to calculate that you already know. We'll be calculating earnings available to equity shareholders divided by cost of equity. You'll be getting value of equity. So shall we write? So write down problem number 12. यहाँ पे step 1 लिखेंगे, calculation of value of equity. Serial number particulars L limited and U limited. यहाँ पे भी इन्वेस्टर इज स्विचिंग इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एल लिमिटेड टू यू लिमिटेड, मतलब लिवर्ड फर्म से वो अनलिवर्ड फर्म की तरफ जा रहा है, राइट. एंड बेसिकली यहाँ पे लिवर्ड फर्म जो है लेवरेज की वजह से उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी. ओके, सो कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर ए ईबीआईटी. ईबीआईटी कितना दिया आपको? 1 लाख ना. लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट कितना दिया है? हाउ मच, मुझे दिख ही नहीं रहा. 50,000. अच्छा, 5 lakhs is the debentures, so 5 lakh into 10%. So EBT is, this is the earnings available to equity shareholders. Next point we can write cost of equity. क्योंकि लिवर्ड फर्म में रिस्क ज्यादा है इसलिए वहां पे शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग 16% एंड अनलिवर्ड फर्म में रिस्क कम है इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12.5%. $3,12,500 and 8 lakhs. Now it has been given that investor is holding 10% of L limited, right? And now he'll be switching his investment to U limited. So same steps, अब further अपने steps same रहेंगे. So write down, have you all completed first working? Write down step 2. Investor will sell, investor will sell 10% shares of company L. Therefore amount realized
amount realized 3,12,500 into 10%, that is 31,250. Written. And to replace corporate leverage with personal leverage, he'll be borrowing in the similar proportion. कंपनी का 5 लाख का borrowing था, 10% उसका holding है, मतलब borrowings का भी 10% वो borrow करेगा, right? So write down, investor will borrow 10% of 5 lakhs, that is rupees 50,000 at the rate 10%. Step number 4, total funds available for investment in company U. So you can just show working 31,250 plus 50,000. This will be 81,250. Step 5. अब वहां पे आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर दिया था, यहाँ पे पर शेयर मार्केट वैल्यू आपने कैलकुलेट नहीं किया, वी हैव कैलकुलेटेड टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वी डोंट नो द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो व्हाट वी कैन डू इज, वहां पे क्योंकि परसेंटेज डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते थे, हियर विल कैलकुलेट द परसेंटेज होल्डिंग इन कंपनी यू, ताकि जब आप अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करोगे, दैट टाइम विल बी नोइंग द परसेंटेज, उसी परसेंटेज में उसको अर्निंग्स मिलेगा, राइट? देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप, राइट डाउन परसेंटेज ऑफ shares acquired in company U. Percentage of shares acquired in company U. 81,250 divided by 8 lakhs into 100. 8 lakhs में से 81,250 के shares उसने खरीदे. So how much percentage this will be coming to? 10.16% approximately, right? Now what we can do is we can start with the calculation of arbitrage profit. Calculation of arbitrage profit. Serial number, particulars, L limited and U limited. अब फर्स्ट वर्किंग में हमने ऑलरेडी ईबीटी कैलकुलेट किया है, तो अगेन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है. सो डायरेक्टली वी कैन राइट ईबीटी, दिस इज नथिंग बट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो ब्रैकेट में आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. कितना कैलकुलेट किया था हमने? 50,000 एंड 1 लाख. B, net earnings available to investor अब इसका अर्निंग क्या क्या होगा? एक तो डिविडेंड होगा, एंड जब उसने स्विच किया है दैट टाइम ही हैज टेकन लोन, देयरफॉर उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इसके अर्निंग्स में से इंटरेस्ट लेस होगा, देन ही विल बी गेटिंग नेट अर्निंग्स.
तब उसको डिविडेंड कितना मिलेगा? नाउ फर्स्ट विल कंप्लीट विद एल लिमिटेड ओनली. इफ यू वुड हैव कंटिन्यूड विद एल लिमिटेड, हाउ मच वुड हैव बीन नेट अर्निंग्स? ही वाज होल्डिंग 10%, टोटल शेयर होल्डर्स को 50,000 अर्निंग्स मिला है, तो उसका 10% उसको एज अ डिविडेंड मिलेगा. एंड ऑलरेडी assumption you have seen there should be no retained earnings. मतलब जितना अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है 100% ऑफ दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. एंड उसका होल्डिंग था 10%, इसलिए 5,000 उसको एज अ डिविडेंड मिलेगा. इंटरेस्ट उस दैट टाइम ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग, therefore 5,000 was his net earnings. Now when we have switched to company U limited, now how much will be his earnings? टोटल शेयर होल्डर्स को 1 लाख एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया. अब उसका प्रोपोर्शन कितना है? 10.16% जो हमने कैलकुलेट किया है, तो 1 लाख का 10.16% एज अ डिविडेंड उसको मिलेगा, तो 10,160, राइट. बट जब उसने कंपनी यू में इन्वेस्ट किया तो उसने बोरो भी किया है. कितना बोरो किया था उसने? 50,000. तो 50,000 के ऊपर उसको 10% से इंटरेस्ट पे करना होगा, दैट इज 5,000. So his net earnings will be 5,160. So you can write C. Arbitrage gain 160. Completed? Any difficulty? So similar steps we are following. Okay. So now read 45th problem. Today first at least we'll be completing first part of capital structure, that is all the theories. मतलब मोडिग्ले ने मिलर अप्रोच, जो और थ्योरी दो है वो तो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पैराग्राफ वाइज है, वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीक में. Now read 45th problem. Have you read? As compared to previous problem, इसमें और क्या डिफरेंट है? एक तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी नहीं दिया, तो फर्स्ट वर्किंग वी हैव टू ड्रॉ वैल्यू ऑफ इक्विटी. एंड व्हाट इज वन मोर थिंग व्हिच इज नॉट, हाँ प्रीवियस प्रॉब्लम में भी लेवर्ड से अनलीवर्ड में ही स्विच कर रहे थे. मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया था कि कंपनी वाज होल्डिंग 10% शेयर्स ऑफ एल लिमिटेड. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव हाउ ही इज बेटर ऑफ बाय स्विचिंग एल लिमिटेड टू यू लिमिटेड. अब यहां पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि इन्वेस्टर इज होल्डिंग 10% शेयर्स इन विच कंपनी, तो हमें अज्यूम करना होगा दैट इन्वेस्टर विल बी होल्डिंग 10% शेयर्स ऑफ डैश डैश कंपनी. अब कौन सी कंपनी के अज्यूम करेंगे? देयर आर टू कंपनीज एन एंड एम. तो विच कंपनी विल अज्यूम? दैट कंपनी whose total value of firm is maximum. Are you getting? क्योंकि arbitrage कब होगा? He will be selling that company shares whose value of firm is maximum and purchasing the shares whose value of firm is lower, right? So यहाँ पे value of firm भी calculate करना होगा. दोनों में से जिस कंपनी का value of firm ज्यादा है, we will assume that investor is holding 10% shares of that particular company and he'll be selling that company shares and purchasing lower valued shares. Okay? तो ये नोट लिखनी होगी हमें. बट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म. नाउ हियर आई एम सेइंग वैल्यू ऑफ फर्म, नॉट वैल्यू ऑफ इक्विटी. क्यों? क्योंकि हो सकता है किससे एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया था, ओके, एंड दूसरे कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए, तो ऑब्वियसली इन दैट केस जिस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. सो वी हैव टू कंपेयर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, ओके, व्हिच विल बी इंक्लूडिंग डेट आल्सो, क्योंकि हमने तो अज्यूम किया है वैसे तो कैपिटल सेम होना चाहिए, राइट. तो जिस कंपनी ने कम इक्विटी शेयर्स इशू किया है उसने डिबेंचर्स इशू किया रहेगा, राइट.
but the total value, market value, will be depending upon the total value of firm. Okay. So shall we write? So write down first working, calculation of value of firm. Calculation of value of firm. First workings. Serial number, particulars. कौन से दो कंपनी है? N and M ना? कौन से अनलीवर्ड है? M is levered, तो पहले हम M लिखेंगे and then N. EBIT कितना दिया है हमें? 20,000. Less interest from M is levered from having debt of 1 lakh at the rate 7%. तो यहाँ पे 7,000 आएगा इंटरेस्ट, यहाँ पे डैश, now cost of equity has been given to you ना? Cost of equity कितना दिया है? 11.5 for M and N 10%. 11.5% and 10%. So we can calculate value of equity. समझ the value of equity यहाँ पे 1,43,000 and यहाँ पे 2 lakhs. अब N में दूसरा कोई कैपिटल स्ट्रक्चर है ही नहीं, मतलब 2 lakhs तो वैल्यू ऑफ फर्म होगा, बट देन M में डेट है, so write down value of debt. This has been given to you 1 lakh ना? Value of firm 2,13,043 and 2 lakhs. Written? So write down one note below this, or we can write step 2 only. Write down assumption. It is assumed that investor is holding 10% shares in M Limited. It is assumed that investor is holding 10% shares in M Limited. Now remaining steps will remain same, right? So should we write down step 3. Investor will sell 10% shares of M Limited amount realized. इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी? 1,13,000 थी ना? अब 2 lakhs की मत लेना, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स का उसने 10% होल्ड कर किया था, बराबर? तो 1,13,043 इंटू 10% मीन्स 11,304. Then step 4, investor will borrow
10% of rupees 1 lakh, that is 10,000 at the rate 7%. Written. So next line, total amount available, total amount available for investment in N limited 11,304 plus 10,000, so 21,304. Now step 6, arbitrage gain calculation. हमने सिर्फ परसेंटेज दिखाया नहीं, बट देन वी कैन राइट इट ओवर while calculating percentage of holding in company N limited जो दिखाना था वो रह गया, but still there only we can show the working. Okay, so directly we can write EBT 13,000 and 20,000. B, net earnings available to investor. इसमें फर्स्ट डिविडेंड, यहाँ पे उसको डिविडेंड कितना मिलेगा 1300 लेस इंटरेस्ट, नेट अर्निंग्स 1300. अगर उसने कंपनी एन में इन्वेस्ट किया तो उसका डिविडेंड कितना होगा, दिस विल बी 20,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs. दिस इज द पर शेयर अर्निंग एंड प्रपोर्शन 21,304. इस तरह से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम. प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने वो 21,304 डिवाइडेड बाय 2 लाख सेपरेटली दिखाया था परसेंटेज. हाउ मच अर्निंग्स 2130. अब उसको इंटरेस्ट पे करना होगा 10,000 इंटू 7%, 700, तो 1430. arbitrage gain 130. कंप्लीटेड. अब मॉड्यूल में दूसरी मेथड क्या दिया हुआ है, जब एम लिमिटेड में आप थे तो हमने शेयर्स में एज ए इन्वेस्टर का कितना होल्डिंग देखा था, 10,000. कितना एम लिमिटेड में उसका 10% से 11,000 कुछ तो था, 11,304, राइट. दिस वाज 10% एंड उसने बोरो किया फंड्स 10,000 ना, तो टोटल फंड्स उसके पास थे 21,304, राइट. नाउ इन आवर कैलकुलेशन वी अज्यूम कि पूरा का पूरा 21,304 उसने इन्वेस्ट किया दूसरी कंपनी में. अब व्हाट इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट द आर्बिट्रेज गेन, यहां पे हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे, वहां पे हमने अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया था. नाउ व्हाट विल बी अज्यूमिंग, जब वो अनलिमिटेड में इन्वेस्ट करेगा तो वहां पे भी 10% ऑफ शेयर्स ही खरीदेगा,
क्योंकि उसका एम लिमिटेड में 10% था, तो वहां पे भी वो 10% ही खरीदेगा, यानी कि यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना खरीदेगा 20,000। टोटल वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड वाज 2 lakhs, 2 lakhs के 10% मतलब 20,000। तो यहाँ पे उसके इन्वेस्टमेंट में सरप्लस कितना बचा 1304। दिस इज द सरप्लस अमाउंट, राइट। नाउ इफ यू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स, एम लिमिटेड में जब वो कंटिन्यू करता था तो उसका अर्निंग्स कितना था, डिविडेंड 1300, यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं था तो नील, एंड नेट अर्निंग्स वाज 1300। नाउ अनलिमिटेड में जब वो इन्वेस्ट करेगा, उसने 20,000 किया है, मतलब उसको 10% ऑफ द अर्निंग्स मिलेगा। ईबीआईटी सॉरी ईबीटी वाज 20,000, उसका 10% मतलब यहाँ पे 2,000 मिलेगा, राइट। एंड 10,000 उसने जो बोरो किया है 7% से, तो वहां पे इंटरेस्ट पे करना होगा 700, तो यहाँ पे 1300 मींस अर्निंग्स इज रिमेनिंग सेम। नाउ ही इज लेफ्ट विथ सरप्लस कैश ओवर हियर, दिस इज द गेन टू द इन्वेस्टर। टू गेट सेम अर्निंग्स नाउ ही इज इन्वेस्टिंग लोअर अमाउंट, राइट, क्योंकि एन लिमिटेड का लोअर वैल्यूड शेयर ही तो था, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट व्हिच ही इज गेटिंग, दैट इज ही इज रिमेन विद द सरप्लस फंड्स टू गेट द सेम अर्निंग्स। दिस द अनदर अप्रोच, राइट। मॉड्यूल में दोनों दिया है, एग्जाम में आइदर ऑफ दिस और दिस विल फॉलो, ओके। सो राइट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ अर्निंग्स। एक प्रॉब्लम में हम ये मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए नाउ रीड 46th। आपकी इच्छा है कि इस अल्टरनेटिव मेथड लिखने की, तो शॉर्ट में लिख सकते हो आप, अल्टरनेटिव अप्रोच। यानी यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं, टू गेट सेम अर्निंग्स इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड लोअर अमाउंट इन कंपनी एंड देयरफॉर सरप्लस फंड्स रिमेन विद हिम इज 1304। तो अगले प्रॉब्लम में इस तरह से सॉल्व करेंगे, वहां पे नोट लिखेंगे हम। Done. So now has everyone written? Okay. If you have completed, read next problem 46th. Now here it is उल्टा, from unlevered firm we are investing into levered firm, यानी कि unlevered firm की वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली विच इज रेयर, क्योंकि लिवर्ड फर्म जब होता है, लिवर्ड फर्म मतलब वहां पे हम लेवरेज का यूज करते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ लेवरेज नॉर्मली द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी हायर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी गेटिंग सम बेनिफिट, बट माइट बी यहाँ पे अनफेवरेबल लेवरेज होगा,
बिकॉज ऑफ दैट लिवर्ड फर्म में कम आ रही है वैल्यू. ओके. तो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है वैसे. ओनली द थिंग इज दैट यहाँ पे वैल्यू अनलिवर्ड फर्म की ज्यादा आएगी, अदरवाइज स्टेप्स विल रिमेन सेम. तो फर्स्ट हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना होगा स्टेप 1, एंड देन विल राइट द अजम्पशन. राइट. सो राइट डाउन 46 प्रॉब्लम. स्टेप 1, calculation of value of firm. Serial number, particulars, U limited and L limited. EBIT 20,000, 20,000 is given, right? Less interest. L limited में लोन फंड्स कितना है? 1 लाख है ना. 1 लाख इंटू 7%, 7,000. यहाँ पे हम वर्किंग लिखेंगे 1 लाख इंटू 7%. So serial number C, EBT. And this EBT is nothing but earnings available to equity shareholder. So you can write cost of equity. आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% एंड 18%. वैल्यू ऑफ इक्विटी C upon D 2 lakhs and 7 lakhs 22. क्या 72,222 है? हाँ 72,222 है ना. हाँ. एंड देन वैल्यू ऑफ डेट यहाँ पे नील, यहाँ पे 1 लाख. So value of firm याद रखना है आपको कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा एंड व्हेन इट इज नॉट बीन गिवन कि इन्वेस्टर इज होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स इन विच कंपनी, तो अजम्पशन तो होगा, लेकिन अजम्पशन कौन से बेसिस पे होगा? वैल्यू ऑफ फर्म के बेसिस पे, वैल्यू ऑफ इक्विटी के बेसिस पे नहीं. हियर ओनली यू कैन सी अनलिवर्ड फर्म है, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल इक्विटी शेयर से प्रोक्योर किया रहेगा, एंड लिवर्ड फर्म ने पार्ट अमाउंट दिया प्रोक्योर्ड विद इक्विटी, इसलिए ऑब्वियसली वहां पे वैल्यू कम होगी. So always your decision should be on the basis of value of firm, not on value of equity, right? So now, has everyone completed this? So step 2, we'll write assumption. It is assumed that investor is holding
10% shares in company U Limited. Written. Now step 3. अब यहां पे जब उसका 10% शेयर्स है तो यहीं पे हम लिख सकते हैं, नहीं तो चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अमाउंट रियलाइज्ड, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन कंपनी यू लिमिटेड। यू लिमिटेड की शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। हमने अज्यूम किया 10%, यानी कि 20,000 इज अमाउंट रियलाइज्ड। Now will he be borrowing the amount? No. Now will not be borrowing क्योंकि उसका होल्डिंग का किस कंपनी में था? यू लिमिटेड। अब तक जो कंपनी में उसका होल्डिंग था वहां पे कंपनी का बोरिंग था, टू रिप्लेस दैट ही वाज बोरिंग। अब यू लिमिटेड का कोई बोरिंग है ही नहीं, तब अब वो जब एल लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगा, ही विल बी इन्वेस्टिंग इनटू बोथ द कंपनी शेयर्स, यानी कि शेयर्स आल्सो बोथ द कंपनी शेयर्स नहीं, बोथ द इन्वेस्टमेंट। एल लिमिटेड में डेट भी है एंड इक्विटी भी है, दोनों जगह वो 10% इन्वेस्ट करेगा। आर यू गेटिंग? अब तक के प्रॉब्लम्स में वो बोरो क्यों कर रहा था? क्योंकि जिस कंपनी के शेयर्स वो सेल कर रहा था उस कंपनी में बोरोइंग्स था। टू रिप्लेस दैट वी हैव रिटन ऑलरेडी अजम्पशन कॉर्पोरेट लेवरेज विल बी रिप्लेस्ड विद पर्सनल लेवरेज, इसलिए वो बोरो कर रहा था। यहां पे यू लिमिटेड में कोई बोरोइंग है ही नहीं, देयरफॉर ही विल नॉट बी डूइंग एनी बोरोइंग। ओके, तो स्टेप 4, investor will invest in डैश। अब तक के प्रॉब्लम में जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे वहां पे अनलिवर्ड फर्म थी, इसलिए वी आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी शेयर्स। नाउ वी आर हैविंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन कंपनी एल, इक्विटी शेयर्स भी एंड डेट भी है, सो यू विल इन्वेस्ट इन बोथ द ऑप्शंस, राइट? सो इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन डैश 10% shares in L Limited and 10% debentures in L Limited. Step 5, we can write total amount of investment इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी थी? 72,222, तो उसका 10% 7,222 प्लस डेट की वैल्यू टोटल कितनी थी? 1 लाख, तो उसका 10% यानी कि 10,000। तो टोटल अमाउंट जो उसको इन्वेस्ट करनी है वो 17,222 इन्वेस्ट करनी है। इज इट राइट? तो उसने जब सेल किया हाई वैल्यूड फर्म की, तो कितना अमाउंट रियलाइज हुआ? 20,000। नाउ व्हेन ही इज इन्वेस्टिंग 17,222 मींस ही इज हैविंग सरप्लस कैश रिमेन्ड विथ हिम। सो स्टेप 6 वी कैन राइट सरप्लस कैश, surplus cash remained with investor 20,000 minus 17,222. Now write 2778. And now we'll write step 7, calculation of net earnings to investor। यहां पे मैंने आर्बिट्रेज कैलकुलेशन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि यहां पे हमने इन्वेस्ट किया है 10%, टोटल जितने पैसे थे वो इन्वेस्ट नहीं किया. सो इन्वेस्टमेंट इज डन इन सच अ मैनर दैट नेट अर्निंग्स विल बी सेम. तो वहां पे आर्बिट्रेज गेन नहीं आएगा. सो विल बी राइटिंग नोट that in both the case he is earning same, but when he is switching his investment he is remained with surplus cash. This is the benefit to the investor. इसलिए हमने heading लिखा है calculation of net earnings. Okay, so write down serial number, particulars, U limited and L limited. So serial number A, directly we can write EBT, net earnings to equity shareholder. कितना था? 20,000 and 13,000. And directly we can write net earnings to investor. इसमें फर्स्ट डिविडेंड. अगर उसने यू लिमिटेड में कंटिन्यू किया रहता तो उसको डिविडेंड कितना मिलता? यू लिमिटेड उसमें उसके 10% शेयर्स थे, राइट? सो 20,000 इज द टोटल डिविडेंड. उसको देन कितना मिलेगा? 2,000. अब यहां पे इंटरेस्ट का कोई इशू नहीं है एंड ही हैज नॉट बोरोड. उसने इन्वेस्ट किया इनफैक्ट, राइट? तो लेस नहीं लिखना इंटरेस्ट. इंटरेस्ट उसका इनकम ही होगा. अब यहां पे अगर उसने यू लिमिटेड में कंटिन्यू किया रहता तो उसको 2,000 अर्निंग्स मिलता. व्हाट विल बी द अर्निंग्स इन एल लिमिटेड? अब उसने 10% ही इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो 1,300 उसको डिविडेंड मिलेगा. एंड उसने डिबेंचर्स में भी 10% इन्वेस्ट किया है, 10,000. एंड इंटरेस्ट कंपनी कितना पे कर रही है? 7%. यानी कि 700 उसको इंटरेस्ट अब रिसीव होगा, राइट? ही हैज नॉट डन द बोरिंग, ही हैज इन्वेस्टेड इनटू डेट फंड्स. तो दिस इज 700 इज हिज इनकम. तो यहां पे कितना मिल रहा है उसको? 2,000. आर यू गेटिंग बोथ द अप्रोचेस? यहां पे अगर हमने 20,000 जो उसको रिसीव हुआ था टोटल इन्वेस्ट किया रहता तो यहां पे आर्बिट्रेज गेन आता. This is the alternative method which we are solving, right? Now we can write a note below this. Write note. Write down. In both the company, investor earns rupees 2,000 as net earnings. However, the investment required in company L was rupees 17,222, comma, thus investor is benefited by switching his investment from U limited to L limited, as he has remained with surplus cash. From U limited to L limited, as he has remained with surplus cash of rupees, हमने स्टेप में लिखा था ना 2778 समथिंग, 2778. Have you understood? Okay.
So we have completed with the concept of arbitrage. अब यहाँ पे मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच ने विथ टैक्स किधर गए? हाँ, इसमें मेरे आपके नोट्स में एक फॉर्मूला शायद से मैंने दिया है कि नहीं मुझे याद नहीं. Okay, write down one formula, one more formula. Calculation of overall cost, sorry, cost of equity. Write down one formula. Now this problem we have completed and this calculation of arbitrage we have completed. एक problem में by using Modiglan and Miller approach you have to calculate cost of equity. How we will calculate cost of equity? Write down. एक heading लिखो, cost of equity under MM approach. Write down KE is equal to KO plus KO minus KD into debt upon equity. What is KE? Cost of equity, and KO overall cost of capital. Basically what is this formula? जब आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो होता है अनलीवर्ड फर्म का, अनलीवर्ड फर्म में बेसिक जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट विल रिमेन सेम, तो उतना तो मिलना चाहिए. प्लस व्हाट मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच इज सेइंग कि बेसिक जो ओवरऑल कॉस्ट है दैट वी हैव टू से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एम लिमिटेड, अगर 0% डेट हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी से 10%. तो कैन आई से KO विल बी ऑल्सो 10%, राइट, क्योंकि अनलीवर्ड फर्म है. नाउ इफ आई यूज 30% डेट तो यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज होगी. वी ऑलरेडी सीन कि एज एंड हाउ डेट इंक्रीजेस द रिस्क परसेप्शन इंक्रीजेस, देयरफॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज देयर एक्सपेक्टेड रेट. नाउ KE has become say 11%. what will be overall cost? यहां पे ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा? 10% ही ना. हमने स्टार्ट में अज्यूम किया कि ओवरऑल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा, राइट. सो एज अनलीवर्ड फर्म में अपना ओवरऑल कॉस्ट 10% था, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट स्ट्रक्चर वेदर इट इज 0 और 100% डेट, ओवरऑल कॉस्ट यहां पे 10% ही रहेगा, राइट. तो यहां पे हमने ये मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट लिया है. नाउ व्हाट मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच इज सेइंग, ये जो ओवरऑल कॉस्ट है वो तो आपको मिलना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्लस जैसे जैसे डेट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है रिस्क इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो उस रिस्क के लिए उसको प्रीमियम भी मिलना चाहिए, एंड दिस प्रीमियम इज कैलकुलेटेड इन दिस मैनर. ये जो ओवरऑल कॉस्ट एंड जो कॉस्ट ऑफ डेट का डिफरेंस है उसमें डेट इक्विटी के प्रपोर्शन में आपको एडिशनल रिटर्न मिलना चाहिए. दिस इज द रिस्क प्रीमियम. आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए वो रिस्क के लिए मिलना चाहिए. एंड बेसिकली मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच ने ये जो फॉर्मूला है वो कुछ नया डिराइव नहीं किया. हमने एक फॉर्मूला लिखा था ओवरऑल कॉस्ट का. व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? वैल्यू के बेसिस पे नहीं, दूसरा जो फॉर्मूला लिखा था, वेट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बराबर. अब वेट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज टोटल कैपिटल इज 10 lakhs, ठीक है, एंड डेट इज 4 lakhs, तो वेट कितना होगा? 40% वी कैन से. सो हाउ वी हैव कैलकुलेटेड 4 lakh डिवाइडेड बाय 10 lakhs.
means can I say weight is calculated as debt divided by debt plus equity? 10 lakhs means total capital, right, into cost of debt plus a weight of equity will be same, equity divided by debt plus equity into k, this is equal to ko. अगर मैं ये सिंप्लीफाई करने जाऊं एंड लेफ्ट हैंड साइड में इफ आई टेक ओनली के एंड ऑल अदर टर्म्स आई स्विच ऑन अदर साइड, तो अल्टीमेटली आपको यही फॉर्मूला मिलेगा. एज अ होमवर्क यू कैन क्रॉस चेक, आपकी इच्छा हो क्रॉस चेक करने की तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ये फॉर्मूला फर्दर सिंप्लीफाई करते जाओ इस मैनर में कि आपको एक साइड में के ही रखना है. तो ये आप जब लेफ्ट हैंड साइड में लोगे तो माइनस होगा, दिस विल गो ऑन न्यूमरेटर, वो मल्टीप्लीकेशन होगा एंड सॉल्व इट, आपको अल्टीमेटली यही फॉर्मूला मिलेगा. ओके, will not be wasting time in that calculation, time being you can believe me, this is the what you will be getting. Okay, so have you written this formula? Okay, तो इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है. रीड 39th प्रॉब्लम. एक सेकंड, डोंट रीड 39th, एक सेकंड में चेक करता हूँ. रीड 37th प्रॉब्लम, 39th नहीं 37th. अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच वाला पार्ट पेंडिंग रखो, ये ट्रेडिशनल अप्रोच वाला पार्ट हमने सॉल्व ही नहीं किया क्या? 35 सॉल्व किया था क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे यहाँ. आपको क्या दिया है यहाँ पे? 5 डिफरेंट ऑप्शंस आर बीन गिवन कि अमाउंट ऑफ डेट 0 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, 1 लाख एंड सो ऑन. एट ईच amount of debt, different interest rate and different equity capitalization rates are been given to you, right? Now first question is you have to determine the weighted average cost of capital and optimum capital structure by traditional approach. अगर आपको traditional approach याद हो तो how you were calculating EBIT minus interest EBT, this will be the net earnings available to equity shareholders divided by cost of equity which is given in the question. So we'll be getting value of value of equity, then value of debt you will be calculating, or value of debt is itself is been given 0 50,000, ये तो value of debt ही है. So you'll be calculating value of firm and then EBIT divided by value of firm, you will be getting overall cost of capital. This will be the first working. And second working जो है determine equity capitalization rate if Modigliani Miller approach is used, तो वहां पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो अभी हमने लिखा है. ओके, शैल वी राइट डाउन? राइट डाउन हेडिंग 37th ना, ये 37th. So write down heading calculation of weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital and overall cost दोनों सेम ही है. Weighted average cost of capital using traditional approach. सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स एंड राइट हैंड साइड में डेट लिखेंगे, उसके अंदर 5 कॉलम 0 50,000 1 lakh 1,50,000 and 2 lakh.
written. So what first you will be writing? EBIT. EBIT कितना दिया है? 50,000. So in all columns write down 50,000. Written. Serial number B, less interest at the rate. एट द रेट यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि इंटरेस्ट इज डिफरेंट. सिंपली राइट डाउन इंटरेस्ट. फर्स्ट कॉलम में डैश. अब सेकेंड कॉलम में डेट है 50,000 एंड इंटरेस्ट रेट दिया आपको 8%. तो यहाँ पे वर्किंग दिखाओ आप. 50,000 इंटू 8% कितना आएगा? 4,000. अब नेक्स्ट जब डेट 1 लाख होगा तो स्टिल इंटरेस्ट इज रिमेनिंग सेम. तो यहाँ पे 8,000 इंटरेस्ट, यहाँ पे 1 लाख इंटू 8%. तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था कि जैसे जैसे डेट फंड इंक्रीज होगा रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल डेफिनेटली इंक्रीज, बट आफ्टर पर्टिकुलर लेवल डेट फंड होल्डर्स विल आल्सो इंक्रीज देयर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स. तो यहाँ पे 1,50,000 जब हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट हैज चेंज टू 9%. 13,500. 1,50,000 इंटू 9%. एंड जब 2 lakhs डेट हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट हैज फर्दर इंक्रीज टू 9.5%. 19,000. 19,000. ओके. सिरियल नंबर ECEBT. झोपला नाही ना स्वानंद? कॅल्क्युलेटर पर. हा. 46, 42, 36,500, 31,000. Apart from this, nothing has been given, na? So this is the earnings available to equity shareholders. Then we can take cost of equity. Cost of equity has been given to you 10%, 10, 10.5, 11, 11.5 and 12.3. So next line we can write value of equity. Serial number C upon D. कितना रहा है? 5 lakhs, then 4 lakhs, 38,095. 3,81,818. Then 3 lakh, right? And then last 2 lakh. Value of debt dash. Then column heading में आपने लिखा है 1 lakh, sorry 50,000 था ना फर्स्ट. Then 1 lakh, 1,50,000 and 2 lakh. So value of firm
5 lakhs 488,095 481,818 467,391 452,032. Written. So this is value of firm. Now we have to calculate value of overall cost of capital. Na? So next line, weighted average cost of capital or overall cost of capital. This will be EBIT divided by value of firm. Calculate and tell me how much it is. 10%, 10.9, 10.24. साक्षी को अभी नींद आ रही है 10 पॉइंट कॉलम स्किप नहीं करना है 10.37 then 10.70 and नहीं 11 point something will be 0.06. एग्जाम में लिखते टाइम ध्यान से आपको सॉल्व करना है, नहीं तो सब कुछ बराबर करोगे एंड सिली मिस्टेक. अब यहाँ पे आपका कोई कंसेप्चुअल लैप्स नहीं है, बट वाइल कैलकुलेटिंग जल्दबाजी में होता है बहुत बार कि दूसरे कॉलम का एक फिगर लोगे एंड पहले कॉलम का दूसरा फिगर लोगे एंड डिवीजन कर बैठो. इतना सब कुछ करने के बाद जब मेन आंसर गलत आएगा तो एग्जामिनर विल बी कटिंग मोर मार्क्स. ठीक है, ऐसे नहीं कि स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलते हैं, बट एग्जामिनर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है. क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर शीट एवरीथिंग वाज करेक्ट, लास्ट आंसर समवेयर दे हैव मेड अ सिली मिस्टेक. तो जब सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो अकॉर्डिंग टू मी 7 to 8 मार्क्स तो मिलने चाहिए, क्योंकि सारे स्टेप्स बराबर थे. सिली मिस्टेक्स था हार्डली, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे मार्क्स दिए थे. तो इसलिए सिली मिस्टेक्स मत करो. यहाँ पे क्या दिया है, डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपको बताना है. तो यहाँ पे बताओ मुझे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा. हाँ हाँ दीक्षा, यानी कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाना चाहते हो. थिंक फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. 10% ना, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर wherever the cost of capital is minimum and the value of firm is maximum. So you can see this, right? कंपनी को डुबा बैठोगे आप. ऑलवेज थिंक फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इन्वेस्टर या शेयर होल्डर का नहीं कर रहे हो, आप कंपनी का कर रहे हो. सो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर, हमने शायद से लिखा भी था, where cost of capital is minimum, value of firm is maximum and risk is also minimum, right? So here you can see the value of firm is maximum and cost is minimum, right? So write down below this, the optimum capital structure is 100% equity and no debt. The optimum capital structure is 100% equity and no debt, because the value of firm is maximum and overall cost of capital is minimum. And overall cost of capital is minimum. Written. This was the first part, right? Leave one line blank and write down.
calculation of cost of equity under approach. तो यहां पे जो हमने वो फॉर्मूला लिखा था के ई इज इक्वल टू के ओ प्लस के ओ माइनस के डी इंटू डेट अपॉन इक्विटी, तो यहाँ पे वो प्रीवियस जो हमने कॉलम्स ड्रॉ किए वो कॉलम्स नहीं चलेंगे, तो फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट्स है उसके कॉलम्स होने चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला में एक डेट था, इक्विटी था, सो वन कॉलम विल बी फॉर डेट एंड इक्विटी। Then what was the next requirement in the formula? Overall cost of capital. Now first of all ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हुआ है ना, मोडिग्ले मिलर अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा। ओके, सो नेक्स्ट कॉलम शुड बी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज KO, बराबर। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कॉलम देन? कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज KD, एंड देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड यहीं पे हम फॉर्मूला लिखेंगे के ई इज इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD ब्रैकेट में into debt upon equity. Draw this much columns. Written? तो आप लिख सकते हो डेट कितना कितना दिया था, 0, देन 50,000, लीव वन वन लाइन ब्लैंक इन बिटवीन ताकि कहीं पे भी वर्किंग हो तो आप दिखा सकते हो वहां पे। देन 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख। अब इक्विटी कितना होगा? टोटल कैपिटल आपको दिया है 2,50,000। देन नेक्स्ट रो में डेट अगर 50,000 हो तो रिमेनिंग विल बी इक्विटी, दिस विल बी 2 लाख। then 1,50,000, then 1 lakh and 50,000. Now overall cost of capital you are going to tell me. कितना आएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? नाउ यू आर थिंक फ्रॉम मोडिग्लिन एंड मिलर अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने कैलकुलेट किया था वो अलग है, यहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा? हाउ मच? कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में कितना आएगा? ओवरऑल कॉस्ट यानी कि जितना मिल रहा है सब कुछ दे दोगे इन्वेस्टमेंट का। इफ आई वुड हाउ मच परसेंट आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 100% ठीक लगता है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट हाउ मच? हाउ? 50,000, दैट इज अर्निंग्स, रिटर्न ऑन कैपिटल। यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू मोडिग्लिन एंड मिलर अप्रोच
रिस्क परसेप्शन के बेसिस पे, रिस्क क्लास के बेसिस पे होगा, हाउ मच इट विल बी? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जितना, कितना, तो ये मैं कितना पूछ रहा हूं? व्हेन इट वाज अनलीवर्ड फर्म, यानी कि फर्स्ट केस में डेट जीरो है, राइट, 2,50,000 पूरा का पूरा इक्विटी है, एंड फर्स्ट केस में, फर्स्ट रो में आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है? 10%, राइट? तो देयर कैन आई से के इज इक्वल टू क्यू, बराबर? एंड जब आगे जाके डेट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा, लेकिन विल द ओवरऑल कॉस्ट विल चेंज? शुरुआत में यहां पे जब डेट जीरो है तो डेट इज जीरो, तो के इज इक्वल टू के एंड दिस वाज 10%, बराबर? अब जैसे जैसे डेट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा, बट ओवरऑल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा एज पर मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच, राइट? सो फॉर ऑल लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स 10% कॉस्ट ही रहेगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इफ यू रिमेंबर, शायद से मैंने आपको बताया था कि अनलीवर्ड फर्म की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी सेम विल बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ऑल द डेट इक्विटी मिक्स, बिकॉज एज पर मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच द ओवरऑल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर? देयरफॉर यहां पे आपको 10% लिखना होगा, एंड दिस विल बी सेम फॉर ऑल द रोज। आपकी इच्छा हो तो इसको एस्ट्रिक देके नीचे आप कहीं तो दिखा सकते हो। when debt is zero, ke is equal to ko, therefore ke is equal to 10%, and then below you can write ko is equal to 10%, it remains constant at all debt equity mix. Completed? Have you understood why we are written 10%? You have to remember कि कौन से अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो। ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच हो तो ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल कीप ऑन चेंजिंग। ओके, देन कॉस्ट ऑफ डेट तो आपको दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम में डैश, देन 8%, 8%, 9% एंड 9.5%. Now apply the formula and calculate the cost of equity. %10 plus 10 minus 8 into 0 upon 2.5 lakhs. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% ही आएगा। %10 plus 10 minus 8 into 50,000 divided by 2 lakhs, कितना आ रहा है? 10.5%. 10% plus 10 minus 8 into 11.33%. $11.5%. 12%.
Have you written? Have you all completed so far? Shall we proceed now? Now, अब तक हमने ये अज्यूम किया था कि टैक्स वाज नॉट देयर. नाउ फर्दर एक प्रॉब्लम है जिसमें टैक्स के बेसिस पे नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के केस में वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए पूछा था. So you'll also see कि whenever the tax is there, how to calculate the value of firm. In both the case, first net income approach and traditional approach, and then second your net operating income approach and Modiglian and Miller approach. क्योंकि दोनों केस में, दो कैटेगरी के केस में proposition तो similar था, right? So write down heading. न्यू पेज पे आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ फर्म when tax rate is given. And in at first net income approach and traditional approach. अब मुझे आप बताइए नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में अब तक जब टैक्स नहीं था तो हम वैल्यू ऑफ फर्म किस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे? पहले तो हम ईबीआईटी लेते थे माइनस इंटरेस्ट, यू विल बी गेटिंग ईबीटी. दिस वाज कंसीडर्ड टू बी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, you are getting value of equity. Add value of debt, you are getting value of firm. This used to be our method. अब जब टैक्स होगा तो इसमें क्या चेंज होगा? EBT minus tax, you will be getting EAT. This will be the earnings available to equity shareholders. Remaining will remain same. यानी कि EAT divided by cost of equity, you will be getting value of equity plus value of debt, you will be getting value of firm. बस इतना ही है. यहाँ पे कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है. Modiglian and Miller approach में there is some different calculation. Okay, so we can write step 1, calculate EAT, that is EBT minus tax. Calculate EAT, that is EBT minus tax. Step 2, लाइट गई है क्या? शायद से ये चार्ज नहीं हो रहा, चार्जर ही निकाल दिया इसका. Write down further. Calculate value of equity this will be equal to EAT upon cost of equity. And step 3, value of firm. This will be equal to value of equity plus value of debt. बस इतना ही है.
Have you all completed? Okay. Now write down B. Net operating income approach and Modigliani-Miller approach. We'll write down value of firm and make two branches. Unlevered firm or unlevered company, levered company. अनलिवर्ड को अनगियर्ड भी कहते हैं, राइट? लिख सकते हैं आप यहाँ पे जस्ट राइटिंग के लिए, अनगियर्ड कंपनी, कंपनी विथ नो डेट, and this is also called as geared company, company with debt. अब यहां पे VU लिख रहा हूं, मतलब वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। अगर अनलिवर्ड फर्म हो तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आनी चाहिए? आप EBIT कैलकुलेट करोगे, EBIT में से इंटरेस्ट तो नील रहेगा, राइट? सो कैन आई से EBIT इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, या सिंपली हम EBIT में से टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट अगर लेस करें, दिस आई विल बी गेटिंग अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दिस विल बी द टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स एज सच, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहो या ओवरऑल कॉस्ट को, क्योंकि अनलीवर्ड फर्म है, KEs will be equal to KO, right? So simply we can write EBIT into 1 minus tax rate divided by KE or KO. यहाँ पे लिख सकते हो KE is equal to KO at 0 debt, 0% debt. ये याद रखना है हमेशा आपको। Written. Now pay attention. What should be the value of levered firm? Now, as per Modigliani and Miller approach, as well as net operating income approach, जब levered company आएगी, assuming that same capital structure, same capital employed, similar operating earning potential, only the capital structure is different, will the value of firm will change? As per net operating and Modigliani and Miller approach, will the value of firm will change? बेसिक प्रपोजिशन उनका है कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करेगा वैल्यू ऑफ फर्म को, राइट? मींस अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अनलिवर्ड हो या लिवर्ड हो, वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। मींस वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। अब तक हम टैक्स नहीं था इसलिए अज्यूम कर रहे थे, राइट, कि वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। अब जब टैक्स आएगा तो क्या होगा? नाउ हैव यू एवर हर्ड ऑफ टैक्स शील्ड, टैक्स सेविंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट? हमने जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने इक्विटी से फाइनेंस लिया तो कैसे टैक्स आएगा, एंड अगर डेट से फाइनेंस लिया तो टैक्स कितना आएगा। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम कि व्हाई डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस होंगे एंड दूसरा रीजन था टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। अज्यूमिंग सेम रेट वी आर पेइंग, डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड P&L में नहीं आएगा, तो दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, लेकिन इंटरेस्ट P&L में डेबिट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम आएगा। सो कैन वी से देयर विल बी टैक्स सेविंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, राइट? एग्जांपल, सपोज इक्विटी फाइनेंस कंपनी हो एंड इक्विटी के ऊपर आप 10% से रिटर्न दे रहे हो, ओके? आपका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था से 5 लाख रुपए। अब यहां पे डिविडेंड जब आप पे करोगे, सपोज टोटल कैपिटल था यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 लाख, कैपिटल था से टोटल 50 लैक्स। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे पहले तो टैक्स जाएगा,
टैक्स रेट में अज्यूम करके चल रहा हूं 20% या 40%, तो 5 लाख में से 40% टैक्स कितना होगा? 2 लाख, राइट? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 3 लाख। ओके, सपोज टोटल कैपिटल था 10 लाख, तो आपको रिटर्न कितना देना है? 10% से देना है, मींस डिविडेंड आप पे कितना करोगे? 1 लाख, राइट? मतलब नेट कैश अवेलेबल विद कंपनी आफ्टर रीपेमेंट ऑफ फाइनेंसर्स कितना बचा? 2 लाख, राइट? अब सेम अगर मैंने डेट से लिया रहता ये 10 लाख एंड डेट के ऊपर मुझे 10% ही मैं रिटर्न पे कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग इज जो रिटर्न देना था डिविडेंड या इंटरेस्ट, आई एम कीपिंग सेम रेट। ओके, तो बेसिकली आइडियली सेम अमाउंट ही आना चाहिए यहाँ पे 2 लाख, बट व्हाट विल हैपन नाउ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 लाख था, अब इंटरेस्ट पहले जाएगा, यहाँ पे 1 लाख इंटरेस्ट जाएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। अब टैक्स कितना जाएगा यहाँ पे? 4 लाख इंटू 40%, 1,60,000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 2,40,000, and this will be the earnings available, net earnings after repayment of your all the financiers we can say, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40,000 का आपको बेनिफिट हो रहा है, ये यहाँ पे ये 40,000 का बेनिफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्लियर केस में आपने 2 लाख का टैक्स पे किया था, यहाँ पे हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं? 1,60,000। अगर आप देखो तो फाइनेंसर्स को हम 1 लाख ही रिपे कर रहे हैं, यहाँ पे डिविडेंड के नाम से एंड यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम से, बट स्टिल यू आर एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ 40,000। ओनली रीजन इज ये जो डिविडेंड था दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल एंड ये जो इंटरेस्ट है दिस इज टैक्स डिडक्टिबल। दोनों केस में हमने फाइनेंसर्स को 1 लाख ही दिया, लेकिन नेक्स्ट केस में यहाँ पे डेट के केस में 1 लाख वॉज टैक्स डिडक्टिबल एज इट वॉज इंटरेस्ट, बराबर? तो इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्स में बेनिफिट हो रहा है। कितने अमाउंट से बेनिफिट हो रहा है? 4 लाख, राइट? तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू अनलिवर्ड फर्म, लेकिन अब क्या हो रहा है? अनलिवर्ड फर्म में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं था, जहां जैसे आप यहां पे देख सकते हो हमने कोई 40,000 सेव नहीं किया था, लेकिन जैसे हमने लिवर्ड फर्म कंसीडर किया, डेट कंटेंट यूज किया, तो इंटरेस्ट की वजह से आपको टैक्स बेनिफिट होगा, राइट? सो दिस यू हैव टू ऐड, आर यू गेटिंग? जो बेनिफिट हो रहा है अल्टीमेटली फर्म को ही बेनिफिट होगा, सो दिस विल बी एडेड। सो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज सॉरी लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट फॉर ऑल ईयर्स, बराबर? एक साल का हमने कैलकुलेट किया है, वैसे इनफाइनाइट ईयर्स तक बेनिफिट रहेगा सो लॉन्ग एज द कंपनी इज लिविंग, राइट? यहाँ पे टैक्स बेनिफिट जो हमने कैलकुलेट किया है 40,000, ये तो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया है, अर्लियर 2 लाख नाउ 2.4 लाख, सो 40,000 बेनिफिट डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। हाउ आई कैन कैलकुलेट? 1 लाख जो इंटरेस्ट था टैक्स डिडक्टिबल, इसके ऊपर मैंने अगर 40% से टैक्स कैलकुलेट किया तो दिस विल बी डायरेक्टली 40,000, क्योंकि 1 लाख के वजह से ही डिफरेंस हो रहा है प्रॉफिट पे, तो 1 लाख के ऊपर का जो टैक्स रेट रहेगा दैट ओनली विल बी द सेविंग्स। सो टैक्स सेविंग आई कैन कैलकुलेट एज इंटरेस्ट अमाउंट इनटू टैक्स रेट, एंड इंटरेस्ट अमाउंट में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? डेट इनटू इंटरेस्ट रेट, बराबर ना? ये 1 लाख हमने कैसे कैलकुलेट किया? 10 लाख इनटू 10%, so this I can calculate debt into interest rate into tax rate, this will be my tax savings, is it correct? Okay, this is tax saving for 1 year, वैसे तो मुझे इनफाइनाइट ईयर्स तक ये सेविंग रहेगा, राइट? एंड वैल्यू मुझे कब की कैलकुलेट करनी है? आज के डेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको क्या हो गया? हाँ, वैल्यू मुझे आज की कैलकुलेट करनी है, तो जो मुझे 40,000 सेविंग हो रहा है दैट इज फॉर इनफाइनाइट ईयर्स, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी अप्लाई करके। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट एन्युटी? एन्युटी अपॉन रेट। यहाँ पे एन्युटी क्या है? ये टैक्स सेविंग, दैट इज डेट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय रेट। क्या रहेगा? इंटरेस्ट रेट ही तो रेट रहेगा, सो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, this will be a upon r, don't calculate 4 lakhs, right? That was just example. Okay, what I want to explain you is the formula. So value of levered firm will be equal to value of unlevered firm plus, अब जो टैक्स बेनिफिट हमने कैलकुलेट कैसे किया था? डेट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टैक्स रेट, दिस वाज फॉर 1 ईयर, एंड इनफाइनाइट एन्युटी होने की वजह से द फॉर्मूला वाज a अपॉन r, ये आपकी एन्युटी होगी न्यूमरेटर की, सो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। Have you all understood? तो ये कैंसिल होगा, राइट? सो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म
is equal to value of unlevered firm plus debt into tax rate. This is the formula. ये फॉर्मूला दिया है, बट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअली, इसलिए मैंने ये सारा रामायण बताया. अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको याद रखना. ओके, इफ यू अंडरस्टूड वेरी गुड, इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड स्टिल गुड, रिमेंबर द फॉर्मूला. तो ये लिखोगे आप. ये राइट साइड का एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए था, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा. इज इट विजिबल? What you can do, मैं इसको फ्रीज करके रखता हूं, यू कैन जस्ट कॉपी. ओके, विल कंक्लूड. ओके, जस्ट आप कॉपी कर लो, आई विल कंक्लूड. आप कॉपी करके ब्रेक लिख सकते हो. ओके.